Okay, so shalom and welcome everybody from Amritsar in Punjab. It's good to be with you all this evening. और अमृतसर पंजाब से आप सब लोगों को जो है शुभ संध्या और आप सब लोग इसमें हैं, इसलिए मुझे बहुत ही खुशी है और आनंद है. And I'm very excited whenever I come and I meet all of you all and love to talk to all of you all with the love of Jesus in my heart. और मैं बहुत ही ज्यादा उत्साहित हूँ आप लोगों को प्रभु यीशु के प्रेम के बारे में बताने के लिए. So today we have a very specific topic which was given to us by Pastor Jakinder. और पास्टर जसमिंदर के द्वारा जो है हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में चर्चा करने के लिए दिया गया है. He told me to speak to you all a little about the introduction of the Jewish people and the Jewish culture, the start of it. और उन्होंने जो है मुझे यहूदियों के बारे में जो किस प्रकार से वो शुरुआत किए थे उसके बारे में मुझे बोलने के लिए ये मौका प्रदान किया है. So hopefully I will be able to complete it in one session. और जो है एक सेशन में मैं आशा करता हूं कि मैं इस सेशन को जो है पूरा कर दूं. Now, what does it mean to be Jewish, and who are the Jewish people that we read about in the scriptures and the Bible? यहूदी होने का मतलब क्या है और कौन है जो यहूदी है जिसको हम जो है वचन के माध्यम से देखते हैं. Okay, I'm not going to go very deep into the Hebrew language today because you will not be able to understand most of it even if I write it down. और मैं जो है इब्रानियों भाषा को बहुत ही डीप में या फिर उसके गहन अंदर नहीं जाना चाहता, परंतु जो है मैं कुछ बातों को उसमें से बताऊंगा जिसको आप सीखेंगे. But I'll give you all an outline, a story and a storyline right from the beginning, so you all will be able to understand the concept of the Bible and of Jewishness. परंतु मैं जो है आपको केवल रूपरेखा दूंगा शुरुआत से लेकर के अंत तक ताकि आप जो है यहूदियों की धारणा को समझ पाए. Now, the first and the most important thing, I want everybody to understand that God has created one humanity. और मैं आप लोगों को सबसे पहला महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो है मानव समाज को बनाया है. Only one, not two and three. केवल एक ही बनाया है, दो या तीन नहीं बनाया. He has not made Gentiles separately and Jewish people separately. It's a wrong concept. और याद रखें वे अन्य जातियों को और यहूदियों को अलग अलग करके नहीं बनाया है, परंतु जो है उसने एक करके बनाया. जो धारणा वो लोग रखे वो गलत है. From this one humanity, God is producing a Jewish soul inside of people. और एक ही मानव जात के रूप में परमेश्वर ने जो है मनुष्य के अंदर में यहूदियों के बीच में एक ही मन को प्रदान किया. No, from this one humanity, he's creating a Jewish people. और एक ही मानवता में से उन्होंने जो है यहूदी लोगों को जो है रचना किया है. Okay, so the basic concept is all humanity is one in the sight of God. और याद रखें परमेश्वर की दृष्टि में सारा मानव जात जो है एक है. What is so special about the Jewish people is that God has taken them and God is doing something with them and elevating them to a different spiritual level altogether. और यहूदी लोग जो है क्यों अलग है हम लोगों से कि परमेश्वर ने उनको जो है पकड़ा और पकड़ने के माध्यम से जो है उनको एक आत्मिक क्षेत्र में एक दूसरा आत्मिक क्षेत्र में ले जाने के लिए दिया है. Now when I look at the word Yehudi, और जब मैं जो है यहूदी शब्द को देखता हूँ, I'm going to write it in the Hebrew. और इब्रानियों में जो है हमने इसको लिख दिया है, देख सकते हैं. This is the word Yehuda. और ये जो है यहूदा शब्द है. Yehuda. शब्द है. This word Yehuda, from where we get the word Yehudi, comes from the word oneness or echad. और याद रखें जो ये यहूदा शब्द जो यहूदी से लिया गया है इसका मतलब है एक होना. So therefore there is a oneness of a Jew with in his heart and in his mind
with God. Therefore, he is called a Yahudi because he is got echad, a oneness with God. और याद रखें यहाँ पर ये यहूदी शब्द जो है एक रूप के रूप में आया है और ये परमेश्वर से एक रूपता रहता है, इसीलिए जो है ये यहूदी शब्द को परमेश्वर के If you open to the Gospel of John, please open with me to the और Gospel of यदि John. आप यूहन्ना के सुसमाचार को जब आप पढ़ते हैं And go to chapter 17. और 17 अध्याय में जब हम जाते हैं And please read verses 20 and 21. 20 to 23. और इसमें Can से someone read this? 22 और 23 पद को हम पढ़ेंगे 20, 21, 22 and 23. 20 से लेकर के 23 पद तक हम पढ़ेंगे। मैं केवल उन्हीं के लिए विनती नहीं करता परंतु उनके लिए भी जो इनके वचन के द्वारा विश्वास करेंगे सब एक हो, जैसा तू हे पिता मुझ में है और मैं तुझ में हूँ वैसे ही वे भी हम में हो, इसलिए कि जगत प्रतीति करे कि तू ही ने मुझे भेजा। और वह महिमा जो तूने मुझे दी है मैंने उन्हें दी है कि वे वैसे ही एक हो जैसे कि हम एक हैं, मैं उनमें और तू मुझ में कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और जगत जाने की तू ही ने मुझे भेजा और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसा ही उनसे प्रेम रखा। So, to be Jewish means to be on the highest level of oneness with God himself. और यहूदी होने का मतलब है कि उस जो है उच्च श्रेणी में परमेश्वर के साथ एक हो जाना। Because I told you the word Yahudi comes from the word echad, which means to be one, oneness, binding. यहूदी शब्द को एहाब शब्द से बताया हूं जिसका मतलब होता है एक हो जाना। Okay, now I've given you all the basic concept of who a Jew is, but now please turn with me to the book of Genesis and we will open at chapter 11. और जो हम आपको जो है मैंने एक सामान्य रचना प्रदान किया है, अब जो है हम उत्पत्ति की किताब में जाएंगे। In chapter 11 of Genesis, it gives a historical account of a certain people, which I'm going to explain to you how important this is. और उत्पत्ति की उसके जो है 11वां अध्याय में जब हम जानते हैं तो वहां पर जो है विशेष करके यहूदी लोगों के बारे में दिया गया है कि वे कैसे महत्वपूर्ण हैं। Starting from verse 10, it talks about the lineage of Shem. अब यहाँ पर जो है जब हम 10 पद से जाते हैं तो वहां पर सेम की वंशावली के बारे में दिया गया है। Okay, who is Shem? Shem is one of the sons of Noah. अब यहाँ पर जो है नूह का एक पुत्र में से जो है ये सेम पाया जाता है। Noah had 3 sons. He had Shem, he had Ham, and he had Japheth. अब यहाँ पर नूह जो पाया जाता था उसके 3 पुत्र थे, सेम, हाम और याफेत। Japheth, Shem, and Ham. Shem, the lineage of Shem comes down to Abraham. और जो सेम का जो वंशावली पाया जाता है वो अब्राहम तक आता है। From Abraham you get Isaac, और and you अब्राहम get से Jacob. आपके पास जाता है और From Abraham you get Isaac and you get Jacob. और अब्राहम से हमने इसहाक देखा, फिर उसके बाद याकूब देखा। So essentially the lineage of Shem to Abraham, they are from only one tribe from all the peoples on this earth. और यहाँ पर अब्राहम से जब जेकब तक के उनके वंशावली में देखते हैं तो इस संसार में केवल वो एक ही जाति से आते हैं। From all the different families in the earth, the lineage of Shem is only one particular family,
And this family is not yet Jewish in nature. और याद रखिए यहाँ पर सेम का जो वंशावली पाया जाता है, इस संसार के सारे परिवार में से उसमें से एक परिवार सेम का आता है, और वे परिवार जो पाया जाता है वो जो है यहूदी प्रकृति के लोग थे। So Abraham himself was not Jewish until God started making a Jewish soul inside of him. और याद रखें अब्राहम के अंदर में परमेश्वर ने जब तक एक यहूदी की आत्मा या फिर एक यहूदी का भाव उसके जीवन में न डाल दिया, तब तक जो है अब्राहम खुद जो है यहूदी नहीं। Therefore, Gentiles like you and me must first come to Abraham to understand how we need to bring ourselves into the covenant that God has made with the Jewish people. इसीलिए जब हम अन्य जाति में से पाए जाते हैं तो सबसे पहले हमें अब्राहम के पास आना चाहिए, उसके माध्यम से जो है वह हमें एक यहूदी उस समुदाय को लेकर के मिलाता है। Because by understanding Abraham, who was a Gentile and who became and who God made into a Jewish soul, that process is what we need to study and understand. और अब्राहम के उसके उस जीवन शैली के माध्यम से या फिर उसके उस यहूदीपन के माध्यम से हम जो है अपने जीवन में इसको धारण करते हैं। Now the reason why in chapter 11 there is a full generation which is given from Shem to Abraham, it is because there is a certain purpose to this. और याद रखिए यहाँ पर जो है जब हम देखते हैं उसके के बारे में तो कारण इसका हम देख पाते हैं। Like in the book of Genesis, in chapter we will look at और इस अध्याय को हम जो है देखेंगे। Okay, chapter 10 it gives us the generations from Adam till Noah. और 10वें अध्याय में जो है हम आदम के वंशावली से लेकर के नूह के वंशावली तक देखते हैं। So now, why is the Bible leaving out all the other families of the earth and only concentrating on this one family that comes from Adam, his son Seth, to Noah, to Shem, to Abraham, and then Jacob? अब हम जो है बाइबल में देखते हैं कि क्यों जो है सारे परिवार को छोड़ करके परमेश्वर पहले उस आदम, उसके बाद सेम, फिर अब्राहम, फिर उसके बाद आइजक और फिर याकूब के उस वंशावली को लेता है। Because this lineage talks about two things. क्योंकि ये वंशावली जो है या फिर ये वंशावली दो बातों के बारे में बताती है। One, language, and two is the relationship with God. पहला जो भाषा था, दूसरा परमेश्वर से उनका रिश्ता कैसा था। But the most important was the language because they retained the Hebrew language coming all the way from Adam till Abraham. परंतु इसमें से सबसे महत्वपूर्ण बातें जो है भाषा पाई जाती थी क्योंकि जो है ये अब्राहम के वंशावली से आता है। So essentially Abraham is the father of all faith and is the father of us because through him are we able to understand how we can come into faith in God. अब हम देख सकते हैं जो अब्राहम जो पाया जाता है वह जो है विश्वास का पिता पाया जाता है, उसी के माध्यम से कैसे हम विश्वास में अपने आप को ला सकते हैं। Now from Adam to Abraham is 2000 years. अब आदम से लेकर के अब्राहम तक जब हम देखते हैं तो वो जो है 2000 वर्ष होता है। From Abraham to Jesus is 2000 years. अब जो है अब्राहम से यीशु मसीह की उस वंशावली तक देखते हैं तो उसमें भी जो है 2000 वर्ष होते हैं। And from Jesus to us now, we are almost 2000 years.
अब यीशु मसीह से हमारी वंशावली तक जो है अब पूरी रीति से हम कह सकते हैं लगभग 2000 वर्ष पूरा हो गया है। So there is, Abraham is in the middle of all humanity, the history of humanity. अब अब्राहम जो है मानव जात के उसके इतिहास के मध्य में पाया जाता है। And in this, God has made Abraham with a specific role to do for humanity. अब याद रखें, अब्राहम को परमेश्वर ने एक विशेष भूमिका प्रदान की है कि एक विशेष भूमिका को निभाए। And what Abraham started, Yeshua, Jesus has completed and perfected. अब याद रखें, अब्राहम से लेकर के यीशु मसीह तक जो है वो भूमिका अभी आ रही है। No, what Abraham started was perfected by Jesus. और जो अब्राहम ने शुरुआत किया वो यीशु मसीह के माध्यम से पूरा हो गया। The covenant that was given to Abraham was the covenant of circumcision. अब याद रखें, जो कवनेंट या फिर जो वाचा जो है अब्राहम को दिया गया था वह खतना का वाचा था। The circumcision of the heart. और वो खतना जो है हमारे हृदय का होना चाहिए। Jesus came and he perfected the circumcision of the heart. अब यीशु मसीह जो है आया और आने के बाद जो है उसने हृदय की उस खतना को जो है पूरा किया है। Okay, when we are doing the study about the circumcision of the heart, that's the time I'll explain this a lot more. और जब हम जो है इस हृदय के खतना किस प्रकार से किया जाता है उसके बारे में शिक्षा दूंगा, उस समय मैं इसके बारे में ज्यादा रूप से व्याख्या आपके सामने में करूंगा। But for now, I want you to understand that Abraham, the moment he got circumcised in his heart and in his body, mostly his heart, he started becoming a Jewish soul. परंतु अभी मैं जो है आपको बताना चाहता हूं कि जब अब्राहम से जो है उसका हृदय का खतना किया गया, वो जो है उसके आत्मा से शुरुआत किया गया है। Okay, is everyone with me? Is everyone understanding what I'm saying? Okay, now please turn to Genesis chapter 12. अब जो है हम उत्पत्ति उसका 12 अध्याय में जाते हैं। And we will read. Can someone read verses 1 to 3? और 12 का उसका पहला पद से 3 पद तक हम पढ़ेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम बड़ा करूंगा और तू आशीष का मूल होगा, और जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा, और जो तुझे कोसे उसे मैं शाप दूंगा, और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। Now I want to explain this from the original Hebrew text. So please listen very carefully. अब जो है इसको मैं जो है एक शुरुआती या फिर उसके मूल इब्रानी भाषा से जो है अनुवाद करना चाहता हूं, तो आप इसको ध्यान से सुने। It says that the Lord spoke to Abraham saying, "Go forth from your land and from your father's house to the land that I will show you." अब यहाँ पर जो है यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। The word in Hebrew is lech lecha. अब यहाँ पर जो इब्रानियों में भाषा है लेख लेखा। Lech lecha means go for your own good. और लेख लेखा का मतलब है अपने खुद के उस गुड के लिए चले जाओ, आपके अच्छे के लिए जाओ। That means God gave Abraham a choice saying, get up and go. If you go, it will be for your own good. अब यहाँ पर जो है अब्राहम को परमेश्वर ने जो है एक इच्छा प्रदान किया है कि तू जा, और इसलिए जा क्योंकि ये तेरे लिए अच्छा होने वाला है। So Abraham listened to God in faith. और अब्राहम ने जो है परमेश्वर को सुना विश्वास के साथ। Because he said,
that if you go for your own good, you will be blessed. If you do not go, you will not be blessed. अब यहाँ पर जो है परमेश्वर उसको कहता है यदि आप जाओगे तो ये आपकी भलाई के लिए होगा, यदि आप नहीं जाओगे तो आप आशीष को प्राप्त नहीं करोगे। Then he says, I will make you a great nation. और उसके बाद वो कहता है कि मैं तुझे एक बड़ा राज्य बनाऊंगा। But not a nation, a political nation. I will make you a great nation of people that are special on this earth. मैं तुम्हें जो है राजनीतिक जो है उस राज्य को नहीं बनाऊंगा, परंतु तुझे जो है परमेश्वर के राज्य का एक जो है बड़ा राज्य बनाने वाला हूँ। So this nation that God is going to make from Abraham is a nation that is going to have a Jewish soul. They're going to be different from the other people on this earth, not a country. और याद रखिए यहाँ पर जो परमेश्वर जो है राज्य बनाना चाहता है, वह राज्य जो है उनको एक यहूदी आत्मा या फिर यहूदी प्राण को उनके जीवन में डालना चाहता है, ताकि वे जो इस संसार के जितने भी और भी समुदाय पाए जाते थे उन लोगों से ये लोग अलग रहे, भिन्न रहे। He says, and I will bless you because of this. और उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें आशीषित भी करूंगा इसके कारण। And then I will make your name great because of this. और इसके कारण मैं तुम्हारे नाम को महान भी बनाऊंगा। And you shall be a blessing to all those people who bless you. और तुम जो है आशीष का कारण होगे उन सब लोगों के लिए जो आपको धन्य कहेंगे। Now this word blessing in the Hebrew, what do you call blessing in Hebrew? In Hindi? आशीष। Ashish. Okay, this blessing is the word. How would you call this? Grafting. Grafting. What do you call grafting in Hindi? जोड़ना। No, not jodna. Jodna means to come together. But grafting means that I take like a branch of another tree and I graft it into another tree and both of them become one. Yes, sir. जोड़ना only. Okay, that's what it means. But if they get the right understanding. Yes, sir. Please tell them about it. Please tell them the meaning of blessing. अब यहाँ पर जो है हम ब्लेसिंग का मतलब जो है आशीष देखते हैं। आशीष का मतलब है जोड़ना। So God is saying that the other nations of the world, the other families of the world will be grafted into you as a blessing. अब याद रखें जो इस संसार में और भी जो परिवार रहते हैं वे तुम में जो है आशीष के रूप में जो है जोड़े जाएंगे। Okay, and then it says that all the families of the earth shall bless themselves by you. और सारे इस संसार में जितने भी और भी परिवार पाए जाते हैं आपके द्वारा आशीषित किए जाएंगे। So that is something very special about Abraham, which we must understand. और ये अब्राहम के बारे में जो है एक विशेष बातें हैं जिसको हम समझ रहे हैं। That is why a New Testament talks about the faith of Abraham in the book of Hebrews. और इसी कारण जो है इब्रानियों की किताब में हम देखते हैं अब्राहम उसके विश्वास के बारे में बात करता है। Correct. Therefore, now our faith, we must come to Abraham to understand what this grafting means. अब यहाँ पर जो है हमारा भी विश्वास जो है अब्राहम के तरह के पास में आना चाहिए कि इसका मतलब हम समझ जाए रोपे जाने का मतलब। So now, basically, God has made one humanity. और परमेश्वर ने जो है एक मानवता बनाया है। And from this one humanity, he has produced Jewish soul. और उसी एक मानवता के माध्यम से जो उसने उस यहूदी आत्मा को भी जो है प्रदान किया है या फिर बनाया है। Not created, produced.
different words altogether. उसको जो है बनाया गया है. Okay, and there is the rest of the world, and now the Jewish people. So now basically there are two people. The rest of the world needs to be grafted into the और Jewish जो इस soul. संसार में और भी जो लोग पाए जाते हैं वे लोग जो है यहूदी उस प्राण में जो है जोड़े जाना चाहिए या फिर रोपे जाना चाहिए. Okay, now please open with me to the book of Romans, और रोमियो की पत्री हम निकाल लेंगे and we'll go to chapter 11. और हम उसका 11 अध्याय में जाएंगे. And we're going to read from verse 11 to 20. 21. और sorry. हम 11 11 to 21. पद से 21 पद तक हम पढ़ेंगे. सो मैं कहता हूँ, क्या उन्होंने इसलिए ठोकर खाई कि गिर पड़े? कदापि नहीं, परंतु उनके गिरने के कारण अन्य जातियों का उद्धार मिला कि उन्हें जलन हो. सो यदि उनका गिरना जगत के लिए धन और उनकी घटी अन्य जातियों के लिए संपत्ति का कारण हुआ, तो उनकी भरपूरी से कितना न होगा. मैं तुम अन्य जातियों से यह बातें कहता हूँ, जबकि मैं अन्य जातियों के लिए प्रेरित हूँ, तो मैं अपनी सेवा की बड़ाई करता हूँ, ताकि किसी रीति से मैं अपने कुटुंबियों से जलन करवाकर उनमें से एक का उद्धार कराऊं. क्योंकि जबकि उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुए में से उठने का बराबर न होगा. जब भेंट का पहला पेड़ा पवित्र ठहरा, तो पूरा गुथा हुआ आटा भी पवित्र है. और जब जड़ पवित्र ठहरी, तो डालियां भी ऐसे ही हैं. और यदि कई एक डाली तोड़ दी गई और तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया और जलपाई का जड़ की चिकनाई का भागी हुआ, तो डालियों पर घमंड न करना. और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं, परंतु जड़ तुझे संभालती है. फिर तू कहेगा, डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं. भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है. इसलिए अभिमानी ना हो, परंतु भय कर, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां ना छोड़ी, तो तुझे भी ना छोड़ेगा. Now you are understanding. I brought you all from the book of Genesis, the plan of God for all of humanity, which we are reading in the book of Romans now. और हमने जो है मैंने आपको उत्पत्ति की उस किताब से जो परमेश्वर की योजना थी उसके बारे में से लेकर के अब जो है मैंने तुम्हें रोमियो के पत्री तक लाया है, जिसको हम पढ़ रहे हैं. So now let's define and understand what is a Jew and what is not a Jew. और आइए जो है हम इसके बीच में अंतर करें कि यहूदी होना क्या है और क्या यहूदी नहीं. Jew is spiritual soul. अब जो यहूदी है वह आत्मिक प्राण है. Jews is not a physical people. और यहूदी जो है भौतिक इंसान या फिर लोग नहीं है. It is not that that someone who is born from the tribe of Abraham is physically only a Jew, but you and me also can become Jewish souls if we follow the commandments that Abraham commanded. और याद रखें, केवल अब्राहम की उसके वंशावली से आने वाले लोग ही को हम जो है आत्मिक या फिर यहूदी नहीं कहते हैं, परंतु यदि उसके आज्ञाओं को पालन करने के माध्यम से यदि कोई व्यक्ति आगे चल रहा है तो वो भी जो है उस यहूदियों में अपने आप को शामिल कर सकता है. So you can be born a physical Jewish person from the tribe of Abraham. तो अब्राहम के उसके गोत्र से आप जो है भौतिक रूप से जो है आ सकते हैं इस संसार पे यहूदी बन करके, and not follow the commandments of Abraham. और यदि अब्राहम के उसके आज्ञाओं का पालन नहीं करते तो therefore your Jewishness has become un-Jewish.
और इसीलिए आपका जो यहूदीपन है वो जो है यहूदी ना रहने जैसा हो गया है। But you and me, who are not born Jewish, परंतु आप और मैं जो यहूदी जन्म नहीं लिए हैं, if we come in by faith in Jesus Christ, we become Jewish soul just as good as a Jew. और यदि हम जो है यीशु मसीह के माध्यम से उस पर विश्वास करने के द्वारा यदि हम विश्वास में आते हैं तो हम यहूदी में जोड़े जाते हैं। So don't look at all the Jewish people today that look Jewish, but they do not have the Jewish soul that God wants them to have. और याद रखें आप जो है केवल यहूदी लोगों को ही इसलिए ना देखें क्योंकि उनके पास वो तो यहूदी तो है लेकिन वो आत्मिक रूप से उनके जीवन में वो यहूदी नहीं है। The perfect Jew is what Jesus showed us and what we need to be. और एक सिद्ध यहूदी जो क्या यीशु मसीह ने हमें दिखाया है वो ये होते हैं। Therefore, we need to graft ourselves into Jesus and become a perfect Jewish soul like him. और इसीलिए जो है हमें यीशु मसीह में अपने आप को रोपना है, उसमें लगा देना है ताकि जो है हम यीशु मसीह के समान एक सिद्ध यहूदी बन जाएं। So therefore, ultimately, our purpose is that we have to become a, a nation called Israel that God wants us to be. और हमारा अंततः जो उद्देश्य पाया जाता है वो यीशु मसीह के माध्यम से हमें इजराइलियों में अपने आप को जोड़ना है जिसको हम यहूदी कहते हैं। Okay, oh, please open the book of Galatians chapter 6. और गलातियों की पत्री उसका 6वां अध्याय हम निकालेंगे। If we go to Galatians chapter 6. गलातियों उसका 6वां अध्याय And we will read verse 14, 15 and 16. और 14, 15 और 16 पद को हम पढ़ेंगे। पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्योंकि न खतना और न खतना रहित कुछ है परंतु नई सृष्टि, और जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इस्राएल पर शांति और दया होती रहे। Here, Paul is writing to the Galatians, calling them, saying that as many as walk according to this rule, peace be upon them and mercy upon the Israel of God. अब यहाँ पर जो है गलातियों की पत्री में पौलुस जो है गलातियों के बारे में लिख रहा है कि वे खतना कराने वाले आप तो व्यवस्थापन नहीं है। The Israel of God has two. One is the Jewish people and you and me who are grafted in. अब याद रखें जो परमेश्वर का इस्राएल है उसमें एक तो यहूदी लोग पाए जाते हैं और दूसरा आप और मैं जो उसमें रोपे गए हैं, जोड़े गए हैं। So the Jew and the Gentile, you and me together, we are called the Israel of God. और यहूदी और जो है हम लोग जो अन्य जाति लोग उसमें जोड़े गए हैं वे परमेश्वर के राज्य अर्थात इस्राएल कहलाते हैं। Okay, I will all understood this. It's very, very important. और ये जो है हमारे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप सब समझ जाएं। Okay, so now in context of this, what was the role of Abraham and what was the role of Jesus? और इसी परिच्छेद में लेकर के हम देखते हैं यीशु मसीह का नियम क्या था या फिर उसकी भूमिका क्या थी और अब्राहम का भूमिका क्या था। So as I said before, that God gave Abraham the covenant of circumcision. और जिस प्रकार से मैंने आपको बताया कि परमेश्वर ने जो है अब्राहम को जो है दिया वो खतना के बारे में। But this circumcision had to start from faith. परंतु ये जो खतना पाई जाती है वह जो है विश्वास से शुरुआत होना चाहिए। And slowly the circumcision of the heart became more and more perfect. और याद रखें धीरे धीरे ये हमारे हृदय का जो खतना पाया जाता है वह जो है सिद्ध होता चला गया। But it was not perfected in any human being until the time Jesus came and done the perfect circumcision by dying on the cross.
परंतु जब तक यीशु मसीह जो है इस संसार पर आकर के जो है अपने आप को क्रूस पर नहीं डाल दिया या फिर नहीं सौंप दिया, तब तक जो है यह सिद्ध खतना नहीं था। Because it says that when he died on the cross, the curtain in the temple was torn in two. क्योंकि जो है इस प्रकार से लिखा है कि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया और वो क्रूसीकरण हुआ, तब जो है जो मंदिर का पर्दा था वो दो भागों में बढ़ जाता है। That curtain that was torn in two was his physical body that was completely opened and circumcised now. और उसके भौतिक शरीर के माध्यम से जो है वो पूरी रीति से जो पर्दा था वो फट गया, अब वह जो है एक सिद्ध खतना के रूप में हो जाता है। So the skin or the body of a human being is now able to be fully circumcised like Jesus, because Jesus has done it. और याद रखें, अब मनुष्य का जो भौतिक शरीर पाया जाता है वो शरीर पूरी रीति से खतना किया गया है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जो है हमारे लिए क्रूस पर जान दे दिया। Until Jesus never came and done the perfect circumcision, no humanity was able to go back to God. और याद रखें, जब तक यीशु मसीह अपने आप को क्रूस पर नहीं जान देता और अपने आप को खतना नहीं देता, तब तक जो है मनुष्य परमेश्वर के पास आने का अधिकार नहीं पाया जाता। That is why we read in John chapter 14. Please open to John chapter 14. और जो हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय निकाल लेंगे। Sorry, chapter 15. 15 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय। Jesus says, I am the true vine and my father is the husband. और यीशु ने कहा, सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है। And every branch in me that bears not fruit, he takes away, and every branch that beareth fruit, he purgeth it, and that it may bring forth more fruit. और जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह उसे काट डालता है, और जो फलती है उसे वह छांटता है ताकि और फले। This is what I was talking about, the grafting. What's the word for grafting of that? और इसका मतलब जो है रोपे जाना, रोपण करना सर। That's the word we were looking for. Correct. So when we're reading Genesis 11, we have to take that also into context. Okay, sir. Okay. So Jesus is saying that he's telling his Jewish friends, you are born Jewish from the tribe of Abraham, but your sins have made you un-Jewish. अब याद रखें, यहूदी जो है अपने दोस्तों से, जो यहूदी लोग हैं उनसे कहते हैं कि तुम जो है भले अब्राहम के उसके गोत्र से आए हो, लेकिन आपका कार्य जो है आपको यहूदी नहीं बनाता है। So your circumcision in the flesh is of no use. अब आपका शरीर का जो खतना है वो उसका कोई मतलब नहीं रह गया। But the nations, the Gentiles who are coming in by faith, although they are not circumcised in the flesh, they are just as good as being Jewish because they are circumcised in the heart. परंतु जो अन्य जाति लोग विश्वास के माध्यम से यीशु मसीह में आते हैं, हालांकि उनका शरीर के भौतिक शरीर के रूप में खतना नहीं किया गया, लेकिन उनका हृदय का खतना किया गया है। Now read verses 1 and 2 of 15 again and understand it. और हम जो है 15 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद को पढ़ेंगे। सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है, जो डाली मुझ में है और नहीं फलती वह काट डालता है, और जो फलती उसे वह छांटता है ताकि और फले। It's very beautiful. Then read verses 3, 4 and 5 also. और जो हम तीसरा, चौथा और पांचवा पद को भी जो है यहाँ पर पढ़ेंगे। तुम तो उस वचन के कारण जो मैंने तुझसे कहा है शुद्ध हो, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में। जैसे डाली यदि दाखलता में बनी ना रहे तो अपने आप से नहीं फल सकती, वैसे ही तुम भी यदि मुझ में बने ना रहो तो नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Praise God. Hallelujah. Hallelujah. You have understood now what it means to be Jewish.
आप जो है अब समझ गए होंगे यहूदी होने का क्या मतलब है। Wonderful. Now go back with me to Genesis chapter 12. और जो है हम यहूदी उत्पत्ति और उसका जो है 12 अध्याय में फिर से देखेंगे। And we will read verses 4 और चौथा and 5. Chapter 12 verses 4 and 5. Can someone read verses 4 and 5? किशन जतिंद्र जी आप पढ़ेंगे Kishan is come. उत्पत्ति का। किशन is there? Can you listen me, ma'am? Yes. Kishan, read verses 4 and 5. Problem, sir. That network problem. Hello. Kishan, Yes, sir. can you read? जतिंद्र जी आप म्यूट कीजिए। जतिंद्र जी Kishan, can you hear me? Actually, network problem, sir. Okay, okay. Fine. Yeah. I think we'll close for today. Let's not continue. We already closed 1 hour. We will do Okay. part 2 next week. I think this is enough for them today. Huh? Okay, sir. yes Okay. We have a network problem also. So